Hi. So today we are going to start with Margaret Mead. Margaret Mead. In last class we have done about Ruth Benedict, and if we revise a bit, so what we did in Ruth Benedict was, what was Benedict's belief was that personality affects the culture. So we also read about her case study of Zuni and Kwakitul tribe, in which she distinguishes these two tribes and into two personalities, two types of personalities. One is Apollonians and the other one is Dionysians. Apollonians are somewhat sympathetic, empathetic, compassionate, and non competitive kind of peaceful mindset kind of personality, and Dionysians are very aggressive and competitive, full of jealous type of personality. So that's how she says that because their personality is like this, that's why their culture is like this, that their personality has affected, has made their culture. Okay, so basically she's saying that personality of one individual. शी ऑल्सो बिलीव्स इन साइकी यूनिटी ऑफ मैनकाइंड. भाई पर्सनैलिटी ज़्यादातर लोगों की सेम ही होती है, एंड व्हेन दिस पर्सनैलिटी इज़ एडेड और समेटेड इट बिकम्स अ कल्चर. ठीक है, इट बिकम्स अ कल्चर. पर्सनैलिटी अफेक्ट्स द कल्चर. नाउ इफ़ वी कम टू मार्गरेट मीड. Now Mead herself was a student of Benedict. Okay, Mead was a student of Ruth Benedict, and they both were lifetime of sort of best friends. ठीक है, तो ये दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स टाइप के थे, एंड दैट्स वाई दे बोथ हैव ईच अदर्स इन्फ्लुएंस ऑल्सो अलॉट. तो मार्गरेट मीड सेज कि ऐसा नहीं है कि जो पर्सनैलिटी है वो दो ही टाइप्स की हो सकती है. पर्सनैलिटी कितनी भी टाइप्स की हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द कल्चर. सो व्हाट शी सेज इज समवट ऑपोजिट ऑफ, समवट कॉन्ट्रेरी टू बेनेडिक्ट, कि कल्चर अफेक्ट्स द पर्सनैलिटी. ठीक है, here it was personality affects the culture. Here what Mead is saying is culture affects the personality. Now Mead has done some very groundbreaking works, very important works in the field of anthropology, and when it comes to connecting the linking the psychology with anthropology. So she has worked in Samoa, अमेरिका एंड बाली. ठीक है, और हर prominent books are coming of age in Samoa. Sex and temperament in three primitive society. Let's see each one by one. What are they? ठीक है, and what she tells about in each of her book. So Mead says that culture of, because a culture of a place exists like this, so and so, this is the reason why the personality of a person is like this. ठीक है, तो culture influences personality. So she says in her study of coming of age in Samoa, she has studied, or let's say compared, two cultures. One is Samoan girls and another one is American girls, and in these two field studies she has actually studied the teens or adolescent girls child rearing practices. We can say कि बचपन से किस तरह से बड़ा किया जाता है या किस तरह की अपब्रिंगिंग दी जाती है कल्चर में, उसके बेसिस पे किस टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप होती है. ठीक है, तो व्हाट शी सेज इज़ जो समोवन कल्चर है, इट्स अ वेरी ओपन काइंड ऑफ ट्राइबल कल्चर. ये कोई ट्राइब है, और उस टाइम पे 1920s में जब ये स्टडी की गई थी, 1930s के अराउंड, तो अमेरिका में बहुत क्लोज्ड और नैरो माइंडेड टाइप का माइंडसेट हुआ करता था, वेयर चिल्ड्रन वर, सेक्स वॉज सीन एज अ टैबू,
sexual activity was seen as a taboo, and children were not allowed to talk about sex, not allowed to have premarital sex. It was looked down upon, and children were put into a lot of restrictions, ठीक है, अमेरिका में. But on the other hand, Samoa में she says कि Samoa is a very open minded sort of tribe where premarital sex is allowed, sex is not a taboo, there is very casualness in interaction, social interaction means key interaction among the members of the society, or let's say interaction between the parents and child also. So they are very open. And because she says that they are very open kind of society, so their girls have less tension in their head, or less anxiety and depression, or let's say कि she says there is no depression and anxiety. Girls there are very happy, very cheerful, and see, it's written no tension ridden sort of personality. But American girls are ridden with tension, anxiety, depression. It's because of this kind of culture, ठीक है. So this was her one study where she compared Samoan girls with American girls and studied about adolescent and growing up teenage and stress related to it. ठीक है. Next study that she does is the sexual temperament in three primitive societies. Now this sex is not sexual activity, but it's gender. ठीक है. So she has associated here gender with temperament in three societies. ठीक है. In this study she has studied three mainly societies: शाम्बोली, आरापेश एंड मांगदमूर. अब देखो, इसमें अगर हम इस इधर से इधर की तरफ जाएं, शाम्बोली टू मांगदमूर, तो व्हाट हैपेंस इज़, शाम्बोली में अगर देखें तो शाम्बोली इज़ अ सोसाइटी विच इज़ फीमेल डोमिनेंट. हेयर फीमेल आर मोर अग्रेसिव दैन मेल्स. ठीक है. फीमेल आर मोर अग्रेसिव दैन मेल्स, एंड मेल्स आर वेरी काम, पीसफुल टाइप ऑफ नेचर. और अरापेश में वो कहती है कि इट्स अ वेरी कोऑपरेटिव टाइप ऑफ सोसाइटी. कोई भी ना मेल्स अग्रेसिव है ना फीमेल्स अग्रेसिव है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड पीसफुल सोसाइटी है, पर्सनालिटीज़ हैं. बट मांगदमूर में एकदम इसका उल्टा है कि इट्स अ वेरी पैट्रियार्कल टाइप ऑफ सेटअप. It's a very patriarchal type of setup, and here males are far more aggressive than females. ठीक है. और यहाँ पे थोड़ा सा ईगोइस्टिक और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स ज़्यादा हैं. पीपल आर मोर अनकाइंड टू ईच अदर. ठीक है. नाउ दिस सी, अब इन्होंने बोला है कि इट्स अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी शाम्बोली, and Mangdamur is a patriarchal society. So she says one reason is because their culture is matrilineal and their culture is patriarchal. This is the reason why their personalities are like this. Culture affects personalities. ठीक है. And second reason is she associates the geography to culture. वो ये कहती हैं कि भाई देखो, मांगदमूर वाली जो सोसाइटी है इसकी लोकेशन कुछ ऐसी है वेयर दे हैव हॉट बॉर्डर्स, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर्स. ठीक है. जहाँ पे लड़ाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, मे बी ड्यू टू फूड स्कारसिटी, या फिर एनिमीज़ बहुत ज़्यादा हैं बॉर्डर्स पे. ठीक है. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एंड मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई द सोसाइटी हैज़ दिस, बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ जोग्राफी द सोसाइटी इज़ पेट्रियार्कल, एंड देयर बाय द पर्सनैलिटीज़ आर लाइक दिस, jealous, competitive. And while in Shamboli she says geography their geography is such that here horticulture is more practiced. हॉर्टिकल्चर में फ़ीमेल का रोल ज़्यादा होता है. ठीक है. हॉर्टिकल्चर में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से फ़ीमेल के हाथों का जो टेम्परेचर होता है और जो टेंडरनेस होती है, तो उसमें फ़ीमेल के हाथ ही ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, चाहे वो फ्रूट कल्टीवेशन हो या फ्लावर कल्टीवेशन हो.
ठीक है, या वेजिटेबल कल्टीवेशन हो, ठीक है, तो इसमें फीमेल का रोल ज़्यादा होता है। तो शी सेज बिकॉज दिस इज़ देयर इकोलॉजी इज़ डिसाइडिंग देयर कल्चर, ठीक है, दिस काइंड ऑफ हॉर्टिकल्चरल इकोलॉजी इज़ डिसाइडिंग देयर कल्चर दैट इज़ बीइंग अ मैट्रिलिनियल सोसाइटी, एंड फॉर दैट रीज़न कि भाई इस टाइप का कल्चर है तो इसी टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट शी सेज इन दीज टू ऑफ हर प्रोमिनेंट स्टडीज़, कमिंग ऑफ एज इन समोआ एंड सेक्सुअल टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ से आप इस टाइप के चार्ट्स बना सकते हो दैट फ्रॉम गोइंग हेयर टू हेयर सबमिसिवनेस डिक्रीजेज एंड ऑप्रेसिवनेस इंक्रीजेज, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ फियर ऑफ लाइफ डिक्रीजेज। यहाँ पे शायद से बॉर्डर्स बहुत सेफ हैं, दैट इज़ द रीज़न वाई फीमेल्स आर मोर डोमिनेंट देन मेन, ठीक है। देयर माइट नॉट बी सच हॉस्टाइल एनिमीज एट द बॉर्डर्स और इन देयर जोग्राफिकल विसिनिटी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट शी सेज, ठीक है। नाउ just go through this Margaret Mead's. This was all about her, the Margaret Mead, how she says and proves on कि culture influences the personality, ठीक है। Next what we have to do is सी इसका हम NCA स्टडी, नेशनल कैरेक्टर स्टडी साथ में पढ़ेंगे, सबका, रूथ का भी और मीड का भी, सबका साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। एक नेशनल कैरेक्टर स्टडी की है इन सब लोगों ने मिलके, वो हम इसके बाद पढ़ते हैं। बट इससे पहले ना हम मीड का क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये मीड का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है दैट डेरेक फ्रीमैन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, वो आते हैं और वो बाद में कहते हैं कि जो मीड का जो सैम्पल कलेक्शन है, सबसे पहले तो वो छोटा है और मीड हैज़ गॉट सम मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मे बी जो जिन लड़कियों से वो मिली हैं वो मीड से बहुत मजाक कर रही थी, या फिर बहुत ही ज़्यादा चुलबुले और फिर बबली मूड में थी वो उस टाइम पे, और वो मजाक, उस मजाक को, उस सरकाज़म को मे बी मीड ने सीरियसली ले लिया। सो दिस इज़ व्हाट ही सेज दैट कि Samoa is a Christian, patriarchal, violent, sexually inhibited society and they valued virginity. बोल रहा है कि एकदम ऑपोजिट। भाई मीड सेज कि देयर सेक्शुअल ओपननेस इज़ वेरी कॉमन, बट ही सेज दे वैल्यू वर्जिनिटी सो मच दैट दे इवन हैव अ कस्टम ऑफ टापू फॉर चेस्टिटी विच मीड डिडंट इवन मेंशन, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म देख लेना एक बार कि दैट ही मेट मीड्स इन्फॉर्मेंट हु सेड ऑल गर्ल्स वर जोकिंग विद मीड अबाउट देयर सेक्स लाइफ विच मीड टुक सीरियसली। ही गॉट दिस डेटा फ्रॉम सम एल्डरली चीफ that Mead had not met, Mead only met only adolescent girls, but he met with this elderly chief, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है नेशनल कैरेक्टर स्टडी। नेशनल कैरेक्टर स्टडी में ये है कि सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव स्टडीड some countries culture and personality, and on the basis of some practices like child rearing, क्योंकि आप बचपन से जो प्रैक्टिसेस देते हो ना चाइल्ड रेयरिंग टाइप की या फिर कोई भी, तो उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे वो बोलते हैं दिस पीपल आर सेइंग कि चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस के बेसिस पर ही एक नेशनल कैरेक्टर डेवलप होता है, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक कोर सिमिलैरिटी होती है, ठीक है। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस पे मेनली ध्यान दिया इन्होंने कि एनकल्चरेशन चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस को। दिस नेशनल कैरेक्टर स्टडीज डेवलप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 टाइम्स, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम सपोज करो कि नेशनल कैरेक्टर स्टडी ऑफ इंडिया का करेंगे, अब इंडिया में क्या कॉमन चीज़ है जो आपको पूरे नेशनली
इंडिया में दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर, हर जगह जनरली जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है। और मे बी क्लॉथिंग स्टाइल, जिसमें कि साड़ी, सूट, ठीक है, और पैंट्स एंड शर्ट्स इन मेन, ये बहुत कॉमन है, ठीक है, इस टाइप से। और वैल्यू सिस्टम आपको कुछ मिलेगा, जैसे अ वेरी स्मॉल एग्जांपल लाइक कि आप अपने स्लीपर्स घर के बाहर छोड़ के जाते हो, ठीक है, घर के अंदर। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स दैट एक्यूमुलेट एंड मेक अ नेशनल कैरेक्टर, कि भाई ये कुछ कुछ कोर चीज़ें हैं दैट आर मेजरली फॉलोड बाय पीपल, और दैट्स हाउ द पीपल हैव कैरी द पर्सनैलिटी ऑफ अ नेशन, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि भाई ये लोग क्या कहते हैं। सो इसके टेनेट्स पढ़ लेना। ऑफ कोर्स ये लोग यही कहेंगे कि साइकी यूनिटी ऑफ माइंड, जहाँ पे भी सिमिलर माइंडसेट की बात होगी वहाँ पे एक पॉइंट तो सेम आ ही जाएगा कि दैट पीपल हैव साइकी यूनिटी ऑफ माइंड, दे हैव सिमिलर माइंडसेट, ठीक है। सिस्टमैटिक एस्पेक्ट सबकी जब लर्निंग अपब्रिंगिंग सेम है बच्चों की, तो उसी तरह से वो कल्चर भी सेम हो जाता है, ठीक है। एक एक कैरेक्टर सेम बनता है सब बच्चों का, ठीक है। तो इसमें इसमें रूथ बेनेडिक्ट कहती हैं, रूथ बेनेडिक्ट ने जो एनसीएस डेवलप किया है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था, क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड। इनकी बहुत फेमस बुक है क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड, इसमें बताया इन्होंने एनसीएस का कैरेक्टर, ठीक है। अब क्रिसैंथेमम एंड स्वॉर्ड में ये बोलती हैं कि जो अगेन यहाँ पे भी ये अपनी दो पर्सनालिटीज़ की बात करेंगी कि क्रिसैंथेमम इज़ अ अपोलोनियन पर्सनालिटी एंड स्वॉर्ड इज़ अ डायनोसियन पर्सनालिटी। How Chrysanthemum is an Apollonian personality? Because she says that children there are reared uh, or brought up in a very flowery and good empathetic and soft sensitive manner, ठीक है। But at the same time soldiers there are made very ruthless, ठीक है। नाउ सो यहाँ पे भी इन्होंने यही दो पर्सनैलिटीज़ को डिवाइड किया है, जैसे इन्होंने अपनी बुक में जूनी और काकेतुल को डिवाइड किया था अपोलोनियन और डायनोसियन में, उसी तरह से इन्होंने जापानीज़ चिल्ड्रन को और सोल्जर्स को इस तरह से डिवाइड किया है कि दैट्स हाउ देयर नेशनल कैरेक्टर एग्जिस्ट्स, ठीक है। उसी तरह से जॉफ्री ने एक रशिया की स्टडी करी थी। रशिया में इन्होंने ये बोला था कि बच्चों को ना सॉडल कर दिया जाता है, रैप कर दिया जाता है इस तरह से, जैसे ये अगर बच्चा है तो इसको कपड़े से इस तरह से रैप कर दिया जाता है, सॉडलिंग बोलते हैं इसको। तो इन्होंने ये कहा था कि ये सॉडलिंग इसलिए करी जाती है क्योंकि बच्चा, ताकि इससे बच्चे की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है and he becomes aggressive, and because that child is becoming aggressive at the age of at very infant age of let's say 6 months to 1 year 2 year, तो उस एज में जब वो बच्चा अग्रेसिव बनता है तो वो बड़े होकर भी अग्रेसिव ही बनता है। दैट्स हाउ द रशियन किड्स आर रेयर्ड और ब्रॉट अप, ठीक है, टू मेक देम एग्रेसिव, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्गरेट मीड सेज in her book and keep your powder dry an anthropologist look at America, यहाँ पे इन्होंने अमेरिका की एनसीएस करी है, नेशनल कैरेक्टर स्टडी करी है, और इन्होंने बोला है कि ज़्यादातर बच्चे, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो रशिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, उन्होंने बोला है कि ज़्यादातर बच्चों की पर्सनैलिटी सेम होती है। इट्स ओनली अबाउट लेटर ऑन स्टेजेस पे जो एजुकेशन दी जाती है या एनकल्चरेशन दी जाती है। एनकल्चरेशन मीन्स कि हाउ डू यू लर्न योर ओन कल्चर, ठीक है, थ्रू योर फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, स्कूलिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो एजुकेशन और एनकल्चरेशन जो दी जाती है उसके बेसिस पे पर्सनैलिटीज़ चेंज होती हैं और एक कॉमन कैरेक्टर डेवलप होता है उस नेशन का, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्होंने ये बोला है कि दैट्स हाउ दी अमेरिकन दैट्स हाउ किड्स वेरी,
kids everywhere are same, but with this enculturation and education process their personalities vary. ठीक है. अब नेक्स्ट है ये, एक बार रीड कर लेना. राल्फ लिंटन, 3 इम्पॉर्टेंट बचे हैं, राल्फ लिंटन, कार्डेनर, कोरा डुबॉय. इन तीनों को इंटरलिंक करके मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाती हूँ.